Lord, کل پاکستان کا 75واں یوم آزادی تھا۔ 1947 کو پاکستان کو آزادی ملی، اور اس آزادی میں مسیحیوں کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آمین۔ اور ہماری موجودگی، ہمارے اس ملک میں رہنا اس بات کی یہ گواہی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے دعا کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دعائیں، التجائیں، مناجاتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے حکومت والوں کے لیے دعا کی جائے، اختیار والوں کے لیے دعا کی جائے، اور آگے یہ کہتا ہے کہ تاکہ ہم دینداری اور سنجیدگی کے ساتھ زندگی بسر کریں، دینداری اور سنجیدگی کے ساتھ امن و امان میں رہ سکیں۔ ہمارا دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دینداری کو جو ہے وہ کیا کر سکے، دینداری کی زندگی بسر کر سکے، اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ، چین آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ آمین۔ لہذا اگر دعا نہیں کریں گے تو ہم اس ملک میں دینداری کی زندگی بسر کر نہیں پائیں گے، دعا نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم سنجیدگی کے ساتھ امن و امان میں نہیں رہیں گے۔ اگر مسیحوں کے اوپر دکھ آتا ہے اس ملک میں تو دعا کام کی جا رہی ہے۔ اس لیے دعا بہت کیا کریں اپنے ملک کے لیے جہاں آپ رہتے ہیں۔ یہی کچھ خدا نے اسرائیل کو سکھایا ہے کہ ملک پر قبضہ کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پچھلے 8 ہفتوں سے میں اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ملک کے اندر بسا کیسے جاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے مکمل نجات کا پروگرام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دیا۔ پہلے ان کو مصر سے نکالا، یہ چھٹکارا ہے۔ بڑے بڑے تجربات دیے، یہ چھٹکارے کا کہہ لیجیے ریوارڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص نجات پاتا ہے، خدا ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے زبردست عجائب ان کی زندگیوں میں کرتا ہے، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے عجیب کام کیے، دکھ بھی آئے، مشکلیں بھی آئیں، اور خدا نے ان سارے دکھوں اور مصیبتوں سے ان کو آزاد کیا۔ ان کی منزل ملک کنعان تھا، لیکن ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے بھی، اس میں بسنے کے لیے بھی کیا تھا؟ ان 7 بڑی قوموں اور زوراور قوموں کو نکالنا تھا۔ میں آپ کو اسی حوالے سے سمجھا رہا ہوں کہ روحانی طور پر بھی اسی پیٹرن کے مطابق ہماری نجات اور ہماری آسمان میں داخل ہونے کی جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے، ہمیں رہائی ملی ہے، اور اس نجات کی خوشی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دکھ اور سکھ ان تمام چیزوں کو اس زمین کے اوپر سہ رہے ہیں جیسا، اور ہماری زندگی میں نجات کے بڑے بڑے تجربات بھی ہیں، نجات کی بڑی بڑی گواہیاں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری جو منزل وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں
جو ہے یہ بہت ساری قوموں کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اور بالخصوص بنی اسرائیل کو 7 بڑی قوموں کو جو ہے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی پیٹرن کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ ہتی یہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ہتی قوم یہ کس طریقے کے ساتھ خوف اور دہشت کی روح کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، جو ہے ایمانداروں اور غیر ایمانداروں یکساں طور پر ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میں نے میڈیا کے اوپر کے ذریعے سے آپ کو بتایا۔ پھر جرجاسی اسپرٹ، یہ بدرو، یہ پرنسپیلٹی، یہ حاکم بھی جو ہے اسی طریقے کے ساتھ اس دنیا کے اندر یہ کام کر رہا ہے۔ یہ قوم جس کا مطلب جو ہے وہ مٹی میں رہنا، یعنی دنیا کی خواہشوں کے اندر پھنسنا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کس طور پر جرجاسی اسپرٹ کے جو ہے کنٹرول کے اندر ہے، اور میں نے گورنمنٹ کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کو جو ہے اس کے پر شیطان کا کنٹرول نظر آ رہا ہے۔ یسوع مسیح کو بھی شیطان نے جو ہے یہ آفر دی تھی کہ مجھے گر کر سجدہ کر، یہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ اندازہ یہ کیجئے کہ وہ یسوع کو بھی یہ آفر دیتا ہے، تو ہمیں کس طریقے کے ساتھ وہ دنیا کی شان و شوکت میں پھنسانے کے لیے کوششیں نہ کرتا ہوگا۔ پھر میں نے اموریوں کے بابت بتایا جو گھمنڈی ہیں، جو گھمنڈ کے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اموری، یہ ایجوکیشن کے اوپر بتایا کہ کس طور پر دنیا کی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بھی ابلیس کا کنٹرول ہے۔ یہاں پر جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لوگ جاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ یہ خدا کے جلال کے لیے ہو سکے، لیکن وہاں پر پیدا کون ہو رہے ہیں؟ دہریے، ایتھیزم جو ہے ایتھیزم پیدا ہو رہا ہے، انسانیت پسندی پیدا ہو رہی ہے، خدا پسندی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ گویا جو ہے وہ خدا سے انکاری پیدا ہو رہی ہے، اور بجائے جو ہے انسانی حقوق کے اوپر زیادہ زور۔ ان کو کیا معلوم کہ بائبل مقدس کی جو سٹڈی ہے یا تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ انسان کا خیال رکھتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یسوع مسیح نے دنیا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آمین۔ اموری سپرٹ جو ہے اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر میں نے آپ کو جو ہے وہ حویوں کے فرضیوں کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ریلیجن کے ذریعے سے کیوں کر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ ریلیجس سپرٹ ہے، یہ اونچے مقاموں کے اوپر جو ہے رہتے ہیں۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ کس طور پر جو ہے ریلیجس سپرٹ جو ہے وہ جو ہے دین کو خراب کر رہے ہیں، اور دینی تعلیمات کو ذکر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ فرضیوں سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ ہم کیا ہو سکے، جو ہے فرضی نیشن کے اوپر غالب آ سکیں۔ آمین۔ پھر لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو حویوں کے حوالے سے بتایا، سیلیبریشن ہمیں خداوند نے اس دنیا میں اس لیے رکھا ہے کہ ہر چیز سے لطف اٹھایا جا سکے، چاہے وہ ہمارا بدن ہے، چاہے جو دنیا کی تمام چیزیں ہیں، ان تمام جو چیزیں خدا نے زمین کے اوپر بخشی ہے یہ ہماری خوشی، شادمانی، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ لیکن ساری دنیا کی انٹرٹینمنٹ کے اوپر حوی قوم نے قبضہ کر لیا ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ آرٹس ہے، چاہے یہ ساری جو ہے کریشن ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اس نے اپنے طریقے کے ساتھ کیا کر لیا ہے، وہ قبضہ جما لیا ہے۔ اس نے بدنوں کو جو غلط استعمال کیا ہے، اس نے جو ہے انسانی رشتوں کو جو پامال کر دیا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ تباہی مچا دی ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ان جو پچھلی 6 قوموں کی بابت بتایا ہے، آپ اویئر ہوں ان باتوں کو، اور جب تک اسرائیلیوں نے ان کو نہیں نکالنا
तब तक वो ठीक तौर पर वो मुल्क कनान के अंदर बस नहीं सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये तालीम दे रहा हूं कि जब तक इन 7 बड़ी कौमों को जो है खौफ पैदा कर रही हैं, जो है मुख्तलिफ अंदाज के साथ जो है वो हमला आवर है, जो है ईमानदारों को, चर्चेस को, पूरी दुनिया को जो है नुकसान पहुंचा रही है, इस पर कब्जा करना। जब तक आप इस पर गालिब नहीं आएंगे, आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। याद रखिए, हम कभी भी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते जब तक इन जो है बुरी रूहों, इन कौमों के ऊपर कब्जा नहीं जमा लेते हैं। अब हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि इब्लीस की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों पर है। उस वक्त ये जो है फिजिकली तौर पर मौजूद थी, और खुदा ने तलवार के जरिए से यशवा को और जो है बुजुर्गों को इस्तेमाल किया ताकि इन कौमों को निकाला जा सके, और निकाल कर जो है वो खुद वहां पर बस सके। आमीन। और अब जो है वक्त है कि हम दुआ के जरिए से हम क्या करने वाले हों, इन कौमों के ऊपर कब्जा जमाने वाले हों। और अगर हमारी दुआया जिंदगी ठीक नहीं है, मैं आपको यह साफ तौर पर कहता हूं, बादशाही हमारे लिए जो है कठिन है। बादशाही में दाखिल होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार उभारता हूं। मैं आपको हकीकत बताऊं, जब कलीसिया के अंदर, गौर से सुनिए, अब जरा मतवज्जो होकर बात को सुनना है, जब तक कलीसिया की दुआया जो है मीटिंग के अंदर हाजिरी ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक जो है ये जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं ये बात कर रहा हूं, जब तक कलीसिया के अंदर दुआया इबादत के अंदर हाजिरी ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक ये बड़ी कौमें जो है जान नहीं छोड़ेंगी और ये हमें इस जमीन के अंदर ही खींचे रखेंगी। और जब जो रैप्चर का वक्त आएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे और यही जमीन के ऊपर रह जाएंगे। पौलुस रसूल ने कहा, रहे हुए मालूम ना हो। क्या है, बोलिए, तालीम क्या है? रहे हुए मालूम ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये कौमें हमें खींच कर जमीन के अंदर ही रखें और हम मुंह देखते रह जाए और एक छोड़ दिया जाए और दूसरा ले लिया जाए। ये ऐसा ना हो। ये उस वक्त होगा जब चर्चेस जो हैं वो जो है बेदार होशियार नहीं होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लिहाजा मैं फिर आपसे विनती करूंगा कि दुआया मीटिंग के अंदर जो है या खानदानों समेत आइए, ताकि हम मिलकर दुआ के जरिए से इन बड़ी कौमों को जो है बांध सकें, इन हाकमों को, तारीकी के हाकमों को जो मुख्तलिफ अंदाज के साथ जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे सेटअप को दुनिया के, ताकि क्या हो सके, बादशाही के दरमियान में रुकावट डाली जा सके। आइए जो अहद आज कीजिएगा कि जब आज ये खत्म करता हूं ये 7 कौमों को और इसका अगला मैसेज आखिरी सुनाऊंगा, इसको वाइंड अप करूंगा, तो इसके लिए अपनी दुआया जिंदगी को खूब मजबूत करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दुआया मीटिंग कब होती है? बोलिए, कितने बजे? प्रेज द लॉर्ड। आइए, दुआ को उठाइए, हाथों को, घुटनों को टेकिए, हाथों को बुलंद कीजिए, दिलों को जो है झुकाइए, और आप फिर देखिए कि हव्वी कहां जाएंगे, फिरजी कहां जाएंगे, जरजासियों का क्या हाल होगा, अमूरियों का क्या हाल होगा, और हित्ती नजर भी नहीं आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बात करने जा रहा हूं यबूसियों के ऊपर, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि खानदान इसको बड़े गौर से सुने, क्योंकि जो है मैं आज जो है खानदानों की बाबत आज तालीम देने जा रहा हूं। यबूसियों पर फतह। खुदा ने क्या कहा था कि 7 कौमों को क्या करना है? तुमने मारना है। इस्तिस्ना 7वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और कनानियों और फिरजियों और हव्वियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाई और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना, तू उनसे कोई अहद ना बांधना
और ना उन पर रहम करना। तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूं खुदावन का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। अजीज भाइयों भाइयों, इससे पहले कि खुदा का गजब भड़के हमें जो है उठना है। खुदावन खुद शिकस्त दिलाएगा, लेकिन इसके लिए हमें जो है तैयारी करना होगी। हमें दुआया स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा, हमें प्रेयर वॉरियर बनना होगा, हमें दुआया मर्द दुआया औरत बनना होगा, ऐसी खतून बनना होगा जो दुआ करने वाली, और ऐसा भाई बनना होगा जो मर्द दुआ होगा। हम एक्चुअली जो है इन सारी बातों को बड़ा हल्का ले रहे हैं। ये बादशाही का मामला है भाइयों बहनों। हम इस बात के ऊपर फख्र ना करें कि मैंने मसीह को कबूल किया है और मैंने जो है उसके खून से धुल गया हूं और मैं निजात पा गया हूं। मेरे पास बड़े बड़े तजर्बात हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। बेशक यह आपके पास सर्टिफिकेट है, और बायन ये ऐसा ही जहां इस्राएलियों के पास भी ऐसा था। वो उनके पास छुटकारा था मिस्र का, उनके पास यह कुलजम का 2 हिस्से उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। उन्होंने बियाबान में मन बरसता खुद देखा था, उन्होंने चट्टान से पानी खुद पीते हुए देखा था, उन्होंने खुदा के जलाली कामों को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जो मिस्र में से निकले थे उनमें से सिर्फ 2 यशुआ और कालेब ही जो है वो मुल्क किनान के अंदर दाखिल हो सके हैं। सारी की सारी नई नस्ल जो है वो मुल्क किनान के अंदर दाखिल हुई है। अजीज भाइयों भाइयों, वो सब के सब वहीं पर मर खप गए और बियाबान के अंदर ही ढेर हो गए वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े तजर्बात हासिल किए। ये बड़ी अच्छी बात है कि मैंने निजात पाई है मसीह की, मैंने जो है बड़े तजर्बात अपनी जिंदगी के अंदर रखता हूं, मैं रूहुल कुदस के बड़े तजर्बात रखता हूं, मैं गैर ज़बानें भी बोलता हूं, मैं जो गिफ्ट्स भी रखता हूं, मैं बहुत कुछ रखता हूं। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, तो भी बादशाही हासिल करने के लिए मुझे जोर मारना है। आमीन। मुझे क्या करना है बोलिए? जोर मारना है। पौलुस यीशु मसीह ने कहा जब जोरावर बादशाही को क्या करते हैं, वो छीन लेते हैं। ये बादशाही को छीनना है। और इब्लीस जो है वो हित्ती, वो फिरजी, वो जो है कनानी, वो अमूरी, ये फिरजी, ये सब कौमें क्या कर रही हैं? ये हमें जो है पीछे की तरफ लेकर जा रही है, खींच रही है। इनके पर गलबा पाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यबूसी 7वीं कौम है जिसको निकालने के लिए खुदा ने इस्राएल को हुक्म दिया था। यबूसियों का जो मतलब है, आप गौर से सुनिए, इसका मतलब होता है रिजेक्शन। इसका क्या मतलब है? रिजेक्शन। फिर से बोलिए, ट्रोडन डाउन, रद्द किए जाना, कुचल देना, रोंद देना। रिजेक्शन यबूसियों का क्या मतलब है? अपने स्ट्रोडन, वो जगह जो रोंद दी जाए, जिसे रद्द कर दिया जाए, जिसे कुचल दिया जाए। चुनाचे जब आप यबूसी की बात करते हैं, यबूसियों की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब बनता है रद्द किए जाना, कुचलना और रोंदना। ये इन तमाम चीजों को क्या करते हैं? ये पेश करते हैं। जब आप रिजेक्शन की बात करते हैं, रद्द किए जाने की बात करते हैं, तो हम इससे क्या मतलब लेते हैं? रिजेक्शन को हम किस तरह डिफाइन करें? रिजेक्शन क्या है? किसी चीज को कबूल करने से इनकार करना, फिर जो है किसी चीज को कंसीडर करने से इनकार करना, किसी चीज के ताबे होने से इनकार करना, किसी चीज को सुनने से इनकार करना, किसी चीज को हासिल करने से क्या करना? इनकार करना, किसी चीज को तस्लीम करने से क्या करना? इनकार करना, रिफ्यूज करना। इन तमाम चीजों को जो है एक्सेप्टेंस, जो है कंसिडरेशन, सबमिशन, जो है ये हेयरिंग और रिसीविंग और एडमिशन, इन तमाम चीजों को एडमिट करने को जो है ये रद्द करते हैं, इसको रिफ्यूज करते हैं। ये यबूसी हैं। आमीन।
तो ना से जब आप यबूसियों की बाबत बात करेंगे तो इससे क्या मुराद ली जाती है? रिजेक्शन। और मैं इस पहाड़ को, यबूसियों के इस पहाड़ को द माउंटेन ऑफ फैमिली कहूंगा, द माउंटेन ऑफ फैमिली। ये खानदान का पहाड़ कहलाता है। और इन्होंने क्या किया हुआ है? रिजेक्शन को खानदानों के अंदर वो डाला हुआ है। आमीन। और जब आप फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली की क्या डेफिनेशन होती है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, वालिदैन और बच्चे, इनको क्या बोलते हैं? खानदान कहते हैं। खुदा के इरादे और मंसूबे ये खानदानों की बाबत हैं। और खानदान खुदा का कायम करदा क्या है? ये वो अदारा है। ये क्या है? ये एक इदारा है जिसको खुदा ने क्या किया है? ये कायम किया है। और खुदा ने अपने इरादे और मंसूबे से क्या किया हुआ है? इंसानी अखलाकियात को, उसकी सारी जो मोरालिटी है, उसकी सारी अखलाकियात है, वो तमाम दरिंदों और जानवरों से क्या की है? उसने उसको इम्तियाज बख्शा हुआ है। इस खानदान की इम्तियाजी खसूसियात जानवरों दरिंदों से वो क्या है? वो अलहदा नजर आएगी, आपको इम्तियाज नजर आएगा। इसके अखलाकियात दरिंदों से अलहदा है, इसके अखलाकियात जानवरों से क्या है? वो अलहदा है। और जब खानदान के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो इसका मतलब है कि समाजी और माशरती बिगाड़ समझ लीजिए पैदा हो चुका। चुनांचे किसी भी सोसाइटी, माशरे और समाज के अंदर अगर बिगाड़ है तो इसका मतलब है कि वहां पर खानदानी यूनिट के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है। माशरती बुराइयां और खराबियां ये खानदान की तोड़ फोड़ के साथ मुंसलिक है। बात समझ आई है? चुनांचे रिजेक्शन ये यबूसियों का काम है, सुनने में, सबमिट करने में, रिसीव करने में और फिर एक्सेप्ट करने में इन्होंने इन तमाम चीजों को, ये खानदान का एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेप्टेंस पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर रिसीविंग पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सुनना पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया? कंसीडर करना पाया जाता है। ठीक है कि कंसीडर किया जाए, इसका ख्याल रखना किस कहां पर पाया जाएगा? एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर कंसीडर किया जाता है, एक्सेप्टेंस पाई जाती है। यहां पर ताबेदारी, फरमाबरदारी आपको नजर आएगी और यहां पर आपको एडमिट करना, तस्लीम करना, अच्छा और बुरे को तस्लीम करना ये पाया जाता है, रिसीविंग पाई जाती है। लेकिन यबूसियों ने इन तमाम चीजों का इनकार कर दिया है और इन तमाम चीजों का ये सारी चीजें जिसका इनकार किया जाता है ये मोहब्बत के खिलाफ है। ठीक है, अगर आप कबूल करने से इनकार करते हैं, अगर आप ख्याल करने से इनकार करते हैं, अगर ताबे होने से इनकार करते हैं, अगर आप सुनने से इनकार करते हैं, अगर आप रिसीव करने से इनकार करते हैं, अगर आप एडमिट करने से वो इनकार करते हैं, तो ये किस चीज के खिलाफ है? ये मोहब्बत के खिलाफ है, जो आपको कुरिन्थियों के खत 13वें बाब के अंदर नजर आती है। वहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। मैं इस हवाले को, इस चैप्टर को पढ़ना चाहूंगा। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत साबित
साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम है। याद रखिए, इस किस्म की मोहब्बत जो यह करंथियों 13वें बाब के अंदर नजर आती है, ये खानदानी और इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए ग्लू का काम करती है, यानी मजबूती का काम करती है। आपने कभी ग्लू लगाई है किसी चीज के ऊपर तो उसको जोड़ देती है। तो चुनांचे ये खानदान की मोहब्बत की खूबसूरत पिक्चर आपको नजर आती है। यबूसी जो है इन तमाम चीजों का इनकार करते हैं, यबूसी कौम या रिजेक्ट करती है। यबूसी क्या करते हैं? इन तमाम चीजों को रोन देते और कुचल देते हैं। और इस सबब से क्या है, अगर दुनिया की अदाद शुमार जो इंसानी जराइम के बारे में है वो बड़े जो है फिक्र अंगेज हैं, और वो ये है कि टूटे हुए घराने के खानदान जो है, टूटे खानदान जो हैं, ब्रोकन फैमिलीज जो हैं, वो कानून तोड़ने वालों में के जो कानून तोड़ने वाले हैं उनमें जो है सबसे बड़ा जो है नंबर जो है वो उन लोगों का है जिनकी फैमिलीज ब्रोकन हैं। और नशाबाजी करने वाले ज्यादातर आपको ब्रोकन होम्स से मिलेंगे। गैर कानूनी जिनसी सरगर्मियां, नाजायज तरीके से रोजगार हासिल करना और जेल के अंदर जो सजाएं पाने वाले तकरीबन हर तरह की जो है माशरती बुराइयों का जो तस्वर है वो ब्रोकन होम्स में पाया जाता है। आप बात को समझने की कोशिश करेंगे और फिर गौर से सुनिए। स्पेशली फादर्स की गैर हाजिरी या गाली गलोच, ये सबसे ज्यादा एक खानदान को तोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। जब वो हेड्स जो है वो जो है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो है वो दूर होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, और जहां पर गाली गलोच का रवैया पाया जाता है वहां पर शैतान को, यबूसियों को हमला करने की जो है राह मिल जाती है। याद रखिए, खानदान के अंदर पहले मियां बीवी के दरमियान में मोहब्बत और फिर खानदान के अफराद के साथ मोहब्बत अहम है, और बगैर लव के खानदान का वजूद का आना या उसका तस्वर करना ये जो है ये हो ही नहीं सकता है। और हम ऐसे दौर में जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां पर खानदान गिरवाहट का शिकार है, और जो है खानदान टूट फूट का बेहद शिकार हो रहे हैं। और इससे क्या पैदा हो रहा है? इससे माशरती बुराइयां पैदा हो रही हैं और इससे बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत सारी बीमारियों का सबब क्या है? अनलविंग पेरेंट्स। कौन क्या है? अनलविंग पेरेंट्स, जो ऐसे वालिदैन जो जिनके अंदर जो है जो मोहब्बत नहीं करते अपने बच्चों के साथ। और इससे क्या होता है, जब अनलविंग पेरेंट्स जो है होंगे तो इससे क्या वजूद में आता है? गमगीनी आती है, नाखुशी आती है। गमगीनी और नाखुशी ये इंसानी जिस्म के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। ये कोरोना जो है ये जो है वो जैसे पकड़ लेते ना, हमारा मुदाफती सिस्टम कमजोर हो तो कोरोना वायरस क्या करता है? बोलिए, पकड़ लेता है। इसी तरह
یہ ہے unloving parents یا broken families جہاں پر ہوں گی وہاں پر جو ہے یہ یبوسی اسپرٹ ہے، یہ یبوسی وائرس جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ کسی بیٹے بیٹی لڑکے لڑکی مرد عورت کے امیون سسٹم کو کمزور کر کے بیماریوں کے اندر، نفسیاتی جذباتی بیماریوں کے اندر جو ہے اسے کیا کرتا ہے، وہ اس کو ڈال دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ جب وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جذباتی اور یا نفسیاتی بیماریاں نمبر 1 جو ہے مسئلہ خاندانی جو ہے، خاندانوں کا جو مسئلہ ہے یہ جو ہے یہ بروکن فیملیز ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیو، شیطان یا خاندانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اور ماؤنٹین آف فیملی کو، یہ اس یبوسی قوم کو جو اس پہاڑ کے اوپر براجمان ہیں اور اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ضرور ہے کہ اس کو کیا کیا جا سکے، ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ اسے گرایا جا سکے۔ اور ہنگامی بنیادوں کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ یا اسپرٹ آف الائجا کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کس کی ضرورت ہے؟ ایلیا کی اسپرٹ کی ضرورت ہے، جس نے کیا کیا ہے؟ باپ کے خاندانوں، باپ کے دلوں کو کیا کر دیا؟ باپوں کے دلوں کو جو ہے بیٹوں کی طرف مائل کر دیا، اور بیٹوں کے دلوں کو کیا کر دیا؟ باپ کی طرف مائل کر دیا۔ یہ جو ہے ملاکی کی کتاب کی آخری آیت ہے کہ ایلیا آئے گا۔ آمین۔ اور یہ یبوسی اسپرٹ کو جو ہے اس کے پر قبضہ کیا جائے گا، اور آج بھی خاندانوں کے اندر یہ اسپرٹ آف الائجا کی ضرورت ہے، اور جب تک اسپرٹ آف الائجا نہ ہوگا تو پھر آپ کے خاندانوں کے اندر بگاڑ کو کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے جو ہے ایلیا کی قوت میں جو ہے اپنی زندگی بسر نہ کی یا اس اسپرٹ کے اندر نہ آئے تو پھر خاندانوں کو خطرہ ہے، یہ یبوسی اسپرٹ سے خطرہ ہے، اور وہ کچل کر رکھ دے گا، وہ روند کر رکھ دے گا، وہ تباہ اور برباد کر دے گا۔ آمین۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ پولس رسول نے صاف طور پر آخری دنوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھتے ہیں، ذرا اس کو غور سے پڑھیے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، اور وہ دن کیسے ہیں؟ بولی ذرا پڑھ کر بتائیے۔ تیسرا باب پہلی 4 آیات۔ لیکن یہ جان رکھو کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ آگے۔ کیونکہ آدمی خودغرض، زردوش، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے سب، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ آمین۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ پولس رسول نے جو ہے ان تمام سپرٹس کا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے کی بابت بھی بات کی تھی۔ یہاں پر آپ کو خود غرضی نظر آئے گی، آدمی خود غرض، زردوش، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نا فرمان، نا شکر، نا پاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ۔ کیا نظر آ رہے ہیں؟ ڈھیٹ، تند مزاج، ماں باپ کے نافرمان۔ عزیز بھائیو، بغیر خداوند کی مدد کے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ساری زندگی کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاؤنسلنگ۔ ٹھیک ہے، مغرب کے اندر تو یہ عام بات ہے کاؤنسلنگ کرنا،
वो जाते हैं सेक्रेटरीज के पास, अपने रद्द किए जाने को, अपने रिजेक्शन को बयान करते हैं बगैर मसीह के, और वो जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं, उनको अद्वियात देते हैं, ताकि अपनी रिजेक्शन से जो है वो बच जाए, वो अपने रद्द किए जाने से जो है वो महफूज हो जाए, और वो जो है अपने कुछ जाने और रोंदे जाने से बच जाए। लेकिन वो जो है इसके असर को जो है कभी भी जो है नहीं कबूल कर सकते, रद्द किए जाने के असर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाते हैं। वो हकीकत में वो झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं है ये, और ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देना है और शायद जो है अच्छी नींद लेना, ये वो चंद घंटे जो है वो इससे तो बच जाती हैं, लेकिन सारा दिन सारा वक्त रिजेक्शन के अंदर गुजारते हैं या रद्द किए जाने को में गुजारते हैं। अजीज भाइयों, रिजेक्शन जो ये बुरी स्पिरिट है, ये खानदानों के अंदर घुसी हुई है, इसको निकालना है। ये सिर्फ मेडिकेशन से नहीं, ये सिर्फ काउंसलिंग के नहीं, ये जो है ये खास खुदावन की जो है वो मदद के वसीले से जो है ये स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन जो है वो जा सकती है। अदरवाइज खानदान जो है पूरी तरह मुतासर हो जाएंगे और हो रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, अक्सर औकात क्या होता है, जो है पेरेंट्स जो है वो ऐसे जुमले जो है वो अदा करते हैं जो रद्द करने वाले होते हैं, अपने आप को अपने गुस्से को लूज करते हैं, और यही वो मौका होता है जिससे यबूस इस पर इंतजार कर रही होती है कि ये बाप जाए और मैं या इसके बच्चे के अंदर घुस जाऊं। और झूठ और फरेब जो है ये माँ बाप से सीखा जाता है, जिससे जो है ये रिजेक्शन वकूअ में आ रही है। खानदानों के अंदर की जो लाइफ बसर करना है वो इस तरीके के साथ बसर किया जा रहा है जिससे रिजेक्शन वकूअ में आ रही है, रद्द किया जाना वकूअ में आ रहा है। शौहर बीवी को छोड़ता है या बीवी शौहर को छोड़ती है, रिजेक्शन के मौके भर जाते हैं, और ये लड़कों लड़कियों को, बेटों और बेटियों को बहुत सारी दूसरी राहों की तरफ ले जाते हैं, चोरी में, डकैती में, दहशतगर्दी में, जिस्म फरोशी में, नशाबाजी वगैरह 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 में। और ये सारा रूट यह ये यबूसी स्पिरिट है, ये स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है, ये जो कुचल देना और जिसने रद्द कर देना, रोन देना, ये यबूसी स्पिरिट का काम है। खुदा ने कहा मेरे खानदान जब मुल्क कनान में बसने जा रहे हैं, इसलिए जरूर है यबूसियों को निकाला जाए, ताकि जो है वहां पर रिजेक्शन ना हो, ताकि वहां पर जो है रद्द किए जाना ना हो। और इन चीजों के ऊपर ये बड़ी जो है खुदावंद ने जो है स्टैंड लिया था कि अगर जो है खानदान में कोई ढीठ या तुंद मजाज हो तो उसको सामने लेकर आया जाए उस बच्चे को, ताकि कौम जो है उसे क्या कर सके, बुजुर्गों के सामने उसे संसार कर दिया जाए, ताकि तुंद मजाज ढीठ जो है वो इस्राएल के अंदर नजर ना आए। क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है, ये स्पिरिट ऑफ जो है यबूसी है, ये यबूसी स्पिरिट है जो बेटे और बेटियों के अंदर घुस जाती है, जो एक्सेप्ट नहीं करते, जो सुनते नहीं, जो कबूल नहीं करते, जो या रिसीव नहीं करते, जो तस्लीम नहीं करते, जो ख्याल नहीं करते हैं। और खानदानों के अंदर क्या चीज है, मुझे अपनी बीवी का ख्याल करना, मुझे अपने बच्चे का ख्याल करना है, मुझे उसको कबूल करना है और वो मेरी बात भी सुने और मैं उसकी भी सुनूं। हालेलुया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा जो है मुश्किलात पैदा हो सकती है। अजीज भाइयों, खानदानों के अंदर ये बातें बड़ी अहम है, और जो है इन चीजों को जो है आपने हल्का मत लें, क्योंकि खानदानों के अंदर जो है आप जिम्मेदार होंगे अपने बच्चों को बादशाही के अंदर दाखिल करने के। क्योंकि अगर आपके वसीले से रद्द कर दिए गए तो ये चोरी की तरफ जाएंगे, ये डकैती की तरफ जाएंगे,
ये जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे। आज क्यों जो है ये सारा वजीरिस्तान के बच्चे और ये अफगानिस्तान के बच्चे और इन तमाम जगहों के अंदर क्यों दहशतगर्दी नजर आती है? क्यों बच्चे जो है बॉम्ब या जो है जैकेट्स पहनकर जो है वो निकल जाते हैं? उनको सिखाया गया है कि इन्होंने तुम्हारे बच्चों तुम्हारे खानदानों को तबाह किया है। ये इन तमाम चीजों का कसूर ये लोग हैं, और वो उनका जो है ब्रेन वॉश कर जो है दहशतगर्दी जो वो बच्चों से कराई जाती है। दुनिया के अंदर जो है चोरी डकैती और जिस्म फरोशी का जो रुझान क्यों पैदा हो रहा है? अजीज बहनों भाइयों, ये रिजेक्शन के सबब से है। और अगली बात जो आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपका और ज़हन खुलेगा। मालूम है कि इस पहाड़ के ऊपर कौन सा बादशाह बनकर बैठा हुआ है? हर एक पहाड़ के ऊपर जो है अपने मुख्तलिफ जो है किंग्स जो है, मुख्तलिफ स्पिरिट्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। यबूसियों के पहाड़ के ऊपर जो बादशाह बनकर बैठा हुआ है वो बाल देवता है। कौन सा देवता है? फिर से बोलिए, बाल देवता है। बाल और एजबल या बड़े जो है आपस में मिलते जुलते हैं। एजबल बाल की खिदमत करती है। लास्ट टाइम हवियों के बाबत में बताया था कि जेजबल जो है वो हवियों के पहाड़ के ऊपर जो है वो बैठी हुई है और सेलिब्रेशन वहां ये जेजबल करती है। और इस पहाड़ पर, यबूसियों के पहाड़ पर, खानदानों के पहाड़ के ऊपर, जहां पर जो है खुदावंद यीशु बैठना चाहिए, जहां पर जो है वो जो है खानदान के बाप और माँ बाप जो है अपने बच्चों समेत वहां पर खुशी मनाते हुए नजर आने चाहिए, वहां पर जो है वो बाल नजर आता है। और फिर आप जानते हैं कि ये बाल की अगर बात करें तो जो इसराइल के इर्द गिर्द हर एक ने बाल का अपना वर्जन बनाया हुआ था। बाल के अपने उन्होंने देवता बनाए हुए थे। बाल का मतलब क्या होता है? मास्टर, ऑनर या लॉर्ड, खुदावन जो है देवता से आका, ये जो है मालिक, ये इसको कहा जाता है। ये अफजाइश का देवता है। ये जो है वो सूरज देवता से कहा जाता है। ये रिज़्क देने वाला देवता कहा जाता है। ये बारिश का देवता कहा जाता है। हर एक ने बाल को अपना जो है वो देवता बनाया हुआ था। और बाल आमतौर पर बाल की प्रस्तिश का रिवाज आमतौर पर कैसे होता था? अब गौर से सुनिए। मेल प्रोस्टिट्यूशन वहां पर होती थी। बाल की प्रस्तिश में कौन इन्वॉल्व होता था? ठीक है, ये जो है मेल प्रोस्टिट्यूशन वहां पर होती थी और मोलक देवता की खिदमत यहां पर होती थी। जो है बाल और मोलक भी आपस में मिलते जुलते थे और ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। मोलक देवता भी बाल के साथ मुंसलिक है। यिर्मयाह 32:35 में अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, उन्होंने बाल के ऊंचे मकाम जो बिन हनुम की वादी में हैं बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को मोलक के लिए आग में से गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया और ना मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा मखरू काम करके यहूदा को गुनाहगार बनाएं। ये खुदावंद के ख्याल में भी नहीं आया था कि बाल के ऊंचे मकामों पर मोलक के लिए जो है बेटे और बेटियों को आग के अंदर चलाया जाए। ये खुदावंद के ख्याल के अंदर भी नहीं था कि ये इस्राएली ऐसा करेंगे, ये यहूदा के लोग ऐसा करेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पहाड़ के ऊपर जब बाल और मोलक बैठे हुए हैं, जो बेटे और बेटियों को जो है वो या खा रहे हैं, बेटे और बेटियों को या निगल रहे हैं, बेटों और बेटियों को आग के अंदर जो है वो या जलाकर खाक कर रहे हैं, जलाकर खाक स्तर कर रहे हैं। अजीज भाइयों, बाल को मारने के लिए, बाल को इस बाल देवता और मोलक देवता को नीचे कराने के लिए जरूर है कि हमें स्टैंड लेना होगा। आमीन। तो गया यहां पर जब बुनियादी तौर पर यहां पर मेल प्रोस्टिट्यूशन हुआ करती थी। जो है यहां पर जो है कुत्ते
जो है वहां पर जो है पैदा होते थे। जब आप कुत्ते जो है की बात करते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो ये जो है होमोसेक्सुअल जो है लोग थे, जो बाल के जो है के पुजारी थे, या बाल के जो है वर्शिप करने वाले, ये तमाम हम जिन्स प्रस्त थे, जिसके जरिए से बाल की वर्शिप होती थी, मोलक की वर्शिप होती थी। और बाइबल में कुत्ते जो है होमोसेक्सुअल्स को कुत्ते के साथ तशबीह दी गई है। जब आप इसने सुना जो है 23वां बाब 18वीं आयत में पढ़ते हैं कि फाहिशा की खर्ची और कुत्ते की उजरत की मन्नत को कबूल जो है ना करना, तो जब बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ा जाता है, कुत्ते आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल ना होंगे, जिसका मतलब है होमोसेक्सुअल जो है, इसका मतलब हम जिन प्रस्त जो है वो जो बाल की प्रस्तुत करते हैं, जो मोलक देवता की वर्शिप करते हैं, ये सब जो है वो यहाँ जो है इस पहाड़ के अंदर आपको नजर आते हैं। मालूम है इस दुनिया के अंदर इस वक्त जो है बाल जो है बड़े जो है की बड़ी वर्शिप हो रही है, जहां पर जो है फहश और जो है लड़के औरतें और मर्द जो है बाल की सरेआम प्रस्तुत और स्ताइश कर रहे हैं। ये इसके पीछे जो है यबूसी स्पिरिट है, इसके पीछे जो है स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है। इसलिए मैं खानदानों को उभारना चाहूंगा कि बाज आइए, ये जो है बेटों और बेटियों के जो है सेक्सुअल लाइफ को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। रिजेक्शन, गौर से सुनिए, मैं आपसे थोड़ा सा खुलकर भी बात करना चाहता हूं। रिजेक्शन, गौर से सुनिए, रिजेक्शन बाल की प्रस्तुत करने के लिए उभार सकती है। रिजेक्शन बाल की वर्शिप करने के लिए बेटे बेटियों मर्दों औरतों को उभारती है। इसलिए अपने खानदान के अंदर जो है ये क्रंथियों, पहला क्रंथियों 13वें बाब को परवान चढ़ाएं। हालेलुया। अगर आप जो है इस यबूसी स्पिरिट को नहीं निकालेंगे तो बाल देवता खानदानों के हर एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जो है स्टेट्स के अंदर जो है मुल्कों के अंदर जो है वर्शिप जो है उसकी होती हुई नजर आएगी, और ऐसा नजर आ रहा है। और इसकी बुनियादी रीजन रिजेक्शन है। खानदानों के टूट फूट की वजह से जो है औरतों और मर्दों के दरमियान में उनकी जिस्मानी जो है खदोखाल के ऊपर जो है बुरा असर पड़ रहा है। और इसलिए प्रोस्टिट्यूशन जो दुनिया के अंदर ये क्यों फैल रही है, क्यों पैदा हो रही है, ये क्यों जो है वो बड़ा बिजनेस बन रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? रिजेक्शन। आप इसको मामूली लेंगे? हमारे बेटे और बेटियों की जिंदगियां जो है ये बड़ी कीमती हैं, इसलिए बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ और इनको जो है खुदा उनकी तरबियत के साथ इसको लेकर चलें। आई टेल यू वन थिंग, एक दफ़ा जो है 2018 की बात है, मेरी जो है मेरी बीवी के साथ थोड़ी सी बातचीत हो रही, मैंने से हल्का सा जो है चांटा रसीद कर दिया, और जब मैंने सुमारा जैसे यूं करीब ही थी, और जब वो एकदम से ऐसे हिल गई, और मैंने उस दिन जाना कि मैंने अनीता को चांटा नहीं मारा, मैंने सियून को चांटा मारा। अजीज भाई, इस रिजेक्शन वकूዕ में आती है। क्या कुछ जो है खानदानों के अंदर वकूዕ में आ सकता है? अजीज बहनों भाइयों, समझिए इससे जो है खराबी पैदा हो सकती है। लव दीजिए, हालेलुया। गैर हाजियां खत्म कीजिए, जो है ये गाली गलोच खत्म कीजिए, ये जो है एक दूसरे को मार कुटाई करना बंद कीजिए, और यूं अपनी जिंदगी को जो है खूबसूरत बनाइए। जो है मसीह के जो है मसीह की जो है कलीसिया की मानन जिस पर उसने जान कुर्बान की है, जिसने माफी को परवान चढ़ाया है, जिसने गले से लगाया है। मुबारक है वो आदमी, वो बाप जिसने अपने बेटे मुशर्रफ बेटे को अपने गले से लगा लिया। वो रिजेक्टेड हो चुका था, वो अपने ही सबब से रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन उसने उसे अपने गले से लगाकर उसको मजीद रिजेक्शन से बचा लिया है। आज जो है क्यों जो है आवारा गर्दी जो है स्पिरिट ऑफ वेंडरिंग जो है क्यों नजर आती है? स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। क्यों बच्चे जो है घरों के अंदर नहीं बैठते? स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। क्यों जो है माँ बाप का कहना नहीं मानते? स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन ये काम कर रही है। अजीज बहनों भाई, इससे बचने की बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर अबॉर्शन इस वक्त जो है
टॉप के ऊपर चल रहा है। मिलियंस एंड मिलियंस जो है वो बच्चों का कत्ले आम किया जा रहा है। बाल की वर्शिप जो है सरेआम हो रही है और इसके लिए जो है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है ये अबॉर्शन को क्या किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हिस्सा बनाया जा रहा है। खानदानों के अंदर जो है नापाक काम जो है नापाकियां होने के सबब से अबॉर्शन जो है वो इलीगली जो है इस पाकिस्तान के अंदर भी जो है डॉक्टर्स नर्सेस जो है वो करती हैं, जिसके नतीजे के अंदर ये खानदानी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। बाल की वर्शिप हो रही है। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, बहनों, भाइयों और सब सुने कलीसिया जो है हमें या रिजेक्ट स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को, इस यबूसी स्पिरिट को क्या करना है, किक आउट करना है। हालेलुया, ये खुदावंद का हुक्म है। तू उनके बेटों को जो है अपनी बेटियां ना देना, ना उनकी बेटियों को अपने बेटे देना, कोई तल्लक नहीं उनका। यह इसको निकालिए और खुदावंद को जगह दीजिए। आमीन। ये बहुत जरूरी है। ये चीजें जो है जिंदगियों के अंदर पैदा हो रही हैं, ये जो स्पेशली जो है चोरी चकारी डकैती दहशतगर्दी इस वक्त जो है जमीन का जो है बुनियादी जो इस दुनिया का बुनियादी जो है वो मसला बन रहा है, जो है मार धाड़ मसला बन रहा है। और जो है स्पेशली जो है जिनसी हरासगी जो पैदा हो रही है, इसकी वजह यह है स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है। रिजेक्शन, फहाशी और कुत्ते और अबॉर्शन, ये सब जो है वो बाल की वर्शिप है। अगर खानदानों में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो जो है सारे पेरेंट्स को दिल से सोचने की जरूरत है और माफी मांगने की जरूरत है कि बच्चे और घर, बच्चे और घर, बच्चे और खानदान, बच्चे और खानदान, बाप माँ शोहर बीवी बच्चे क्या है वो यबूसियों के हत्थे ना चढ़ जाएं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, जहां पर रिजेक्शन आती है वहां पर जो है अगर जो है ठीक तौर पर लव जो है वकूम में आए, वहां पर जो है कबूलियत आसान हो सकती है। क्राइस्ट को देखिए, वो रिजेक्टेड लोगों के पास गया। किनके पास गया? रिजेक्टेड लोगों के पास से गया और उसने जो फकीहों फरीसियों को ये कहा, ये कसबियां वो क्या करेंगी, पहले आसमान की बादशाही के अंदर क्या होंगी, वो दाखिल होंगी, क्योंकि वो रिजेक्टेड है। एक बदचलन औरत यीशु मसीह क्या करने लगा, यीशु मसीह एक जगह के ऊपर शमौन फरीसी के घर में खाना खा रहा था और एक बदचलन औरत उस शहर की आई और उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगो दिया और अपने बालों से क्या करने लगी, उसके पांव को पोंछने लगी। और यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि ये रिजेक्टेड है, ये जानता था कि इसको जो है स्पिरिट ऑफ जेबेजेट ने जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, ये रद्द की गई है, कुचली हुई है। और आज ये मौका है, मैं अपनी मोहब्बत से इसे क्या कर लूंगा, मोल्ड कर लूंगा। और ऐसा ही हुआ और उसने ये क्वेश्चन कर दिया कि जिसने जरा जो है मोहब्बत की उसके जरा गुनाह माफ हुए। हालेलुया। और चुनाचे यीशु मसीह ने जो है उस रद्द की हुई को माफ कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक औरत जो है ज़ना में पकड़ी गई, लोगों ने जो है उसे पकड़ कर क्राइस्ट के पास पेश कर दिया। यीशु मसीह जमीन के ऊपर कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया और सिखा जिसने कि पहले कोई गुनाह नहीं किया वो पहले उस पर पत्थर मारे। सब एक एक करके निकल गई वो औरत और यीशु मसीह वहां पर ठहर गए। सिर्फ उस औरत को यीशु मसीह ने कहा कि लड़की बेटी, किसी ने तेरे ऊपर कोई जो है वो हुक्म जो है पत्थर नहीं मारा? उसे कहा किसी ने नहीं। उसे कहा मैं भी तेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाता, जा आगे को कोई गुनाह ना करे। वो खुदा रिजेक्टेड लोगों को जो है मोहब्बत देता है। हालेलुया। खुदावंद जो है महसूल लेने वालों के पास से गया और उन रिजेक्टेड को जो है उसने जो है एक को तो अपना शागिर्द बना लिया, जो इस बात की दलील है ये खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया के अंदर रिजेक्टेड है और ये यबूसियों की स्पिरिट है कि किस तरीके के साथ जब वो ये डाल देते हैं बेटे और बेटियों के अंदर, वो खानदानों के अंदर डाल देते हैं कि तेरा बाप तुझे पसंद नहीं करता, तेरी माँ तुझे रद्द करती है, तेरा खानदान तुझे हकीर जानता है। मैं
तुझे ऐसी जगह दिखाता हूं जहां सिर्फ मजा है, जहां पर तेरी डिजायर्स पूरी होंगी, जहां पर तुझे कुछ नहीं मिलता, जहां पर कुछ तुझे हासिल नहीं होता। मैं तुझे जो है सैर कराता हूं, मैं तुझे लुत्फ देता हूं। और वो उसे किसी कबा खाने में ले जाएगा, वो किसी को झांसा देकर जो है मैं तुझे बाहर ले जाऊं। और नतीजतन जहां गुनाह बदी जो है वो फैलती चली जा रही है, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, इससे बचने की जरूरत है, इससे जो है महफूज होने की जरूरत है। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को जो है तालीम दीजिए। हालेलुया। और इसके लिए एक बड़ा काम क्या किया जा सकता है? पास्टोरल खिदमत। यह है, ये पास्टर्स की खिदमत है जो खानदानों को क्या करते हैं? संभालते हैं। यीशु मसीह चरवाहा बांधकर इस जमीन के ऊपर आया है। मैं अच्छा चरवाहा हूं जो भेड़ों के लिए क्या करता है? अपनी जान देता है, उनके जख्म बांधता है, उनको जो है वो अपने जो है कंधे के ऊपर उठाता है, और जो गुम हो गई है उनको वो ढूंढता है। अजीज बहनों भाइयों, हर एक वालिद और हर एक वालिदा वो क्या करें? वो एक पास्टर का दिल रखना शुरू करें अपने खानदान के अंदर, ताकि क्या हो सके? वो जो है अपने खानदान को बचा सके, खानदान को महफूज रख सके। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, खुदावन जो है बाइबल मुकद्दस में खानदानों की बाबत बात करता है। 123 बार खानदान का जब वर्ड बाइबल मुकद्दस में आया है, और 174 बार खानदानों का जिक्र आया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस खानदानों की बाबत ये बात करती है। खुदा खुद खानदान बनाने वाला अपने आप को जाहिर करता है। आमीन। ट्रिनिटी के अंदर आपको खानदानी असर नजर आएगा। कभी आपने ट्रिनिटी देखी? फादर, सन एंड होली स्पिरिट, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। रूहुल कुदस का क्या काम है? वो बेटे की दुल्हन को तैयार कर रहा है। आमीन। आप यह मुकाशफा 19वें बाब में पढ़ें, यह वो क्या है? वो रूहुल कुदस क्या काम कर रहा है जमीन के ऊपर? ये बेटे की यह दूसरे अखनूम की दुल्हन को तैयार कर रहा है। तो गोया फादर, सन एंड होली स्पिरिट, बाप, बेटा, रूहुल कुदस के अंदर खानदान का यह अंसर पाया जाता है। गोया उसका दिल खानदानों की तरफ है, यानी खुदा का दिल खानदान का दिल है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 68 और उस लिखा है, खुदावन अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। आमीन। God's heart is the heart of the family. Praise the Lord. आप ये देखिए, वो कहता है मुकद्दस मकान में वो यतीमों का बाप है। इस जमीन के ऊपर ऑर्फन जो है कितने जो है नजर आते हैं, क्योंकि ये रिजेक्टेड हैं, ठीक है। और इस सबब से जो है ऑर्फन सेंटर्स के अंदर जो है, आप ओल्ड होम्स के अंदर जो है, आप जो है बापों को और आप वालिदों को और बूढ़े लोगों को देखेंगे जो रिजेक्शन की साफ जो है वो निशानी है। लेकिन आप खुदावन के दिल को देखिए, वो कहता है वो मैं अपने मुकद्दस मकान में क्या हूं? जो है यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस हूं। हालेलुया। इस जमीन के अंदर रिजेक्शन पाई जाती है, और ये स्पिरिट ऑफ जो है वो क्या कर रही है? ये खानदानों के अंदर ये तबाही मचा रही है, ये यतीम पैदा कर रही है, ये बेवाओं को रोंद रही है, ये जो है ओल्ड होम जो है वो क्रिएट कर रही है, ताकि जो है दुनिया को बता सके कि मैं काम कर रही हूं। लेकिन मैं आपको उभारना चाहता हूं कि इसमें जो है थोड़ी सी जो है मोहब्बत दिखाना शुरू करें, ताकि जो है आप जो है खानदानी दिल जो है अपनी जिंदगी के अंदर दिखा सके, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए। आमीन। जो है जब बुजुर्गों के लिए जिनको जो है बेटों और बेटियों ने रद्द कर दिया है, मैं कहूंगा कि वहां पर उनके दिलों के अंदर यबूसी स्पिरिट घुसी हुई है। इसलिए इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए। आमीन। और आप अंदाजा कीजिए कि खुदा यह किस तौर पर इस्राएल के साथ मुखातिब होता है। यशायाह 54:5 के अंदर लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है और उसका नाम रब्बुल फाज है। हालेलुया। आप अंदाजा कीजिए वो किस तरीके के साथ हमें खानदानों के अंदर रखे हुए हैं, हमें किस तरीके के साथ खानदानों के अंदर जोड़ना चाहता है। लेकिन ये बूसी स्पिरिट क्या करती है? बोलिए।
यबूसी स्पिरिट क्या करती है? वो रिजेक्शन देती है, वो तोड़ती है। बाप को बेटे से तोड़ती है, बेटों को बाप से तोड़ती है, बेटियों को माँ बाप से तोड़ती है, माँ बाप को बेटियां रद्द करती हैं, और शौहर बीवी एक दूसरे को रद्द करते हैं। ये रद्द करने वाली स्पिरिट है जो खानदानों को तोड़ मरोड़ रही है, और उनका जो है और शैतान उनको जलील और रुसवा कर रहा है। तो गोया मैं यूं कहूंगा, शैतान खानदानों को यबूसी स्पिरिट के जरिए से क्या कर रहा है? वो रोंद रहा है। बाद दफा क्या कहा जाता है, हम तो खुदा की प्रस्तुति करते हैं, लेकिन ऐसा नजर आता है जैसे बाल की प्रस्तुति हो रही है, जैसे कि मोलक की प्रस्तुति हो रही है, क्योंकि यह खानदानों की मोहब्बत नजर नहीं आती है, क्योंकि यह रिजेक्शन पैदा कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी से, अपने कोलो किरार से, अपने कोलो किरदार के जरिए से, कोलो फेर के जरिए से, अपने कलाम और किरदार के जरिए से हम रिजेक्शन पैदा कर रहे हैं। बाल की प्रस्तुति हो रही है, अफसोस, बाल की वर्शिप हो रही है। मेरे प्यारों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जय वालिदैन, आप इस पर तवज्जो कीजिए। बादशाही में जाने के लिए यह जरूर है यबूसी स्पिरिट को रोन दिया जाए। खानदानों को तबाह करने के लिए उसने क्या क्या तरीके अपनाए हुए हैं। मालूम है कि मिलियन या 40 मिलियन से अबव जो है लोग जो है सिर्फ एड्स से मर गए। ये फैमिली डिजीज है जो उसने जो है यबूसी स्पिरिट ने जो है वो इस जमीन के ऊपर, इस दुनिया के अंदर जो है वो डाली हुई है। कितने मिलियंस बच्चे हैं जो एड्स वायरस को जो है अपने साथ लेकर चल जा फिर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये यबूसी स्पिरिट है। और इस डिजीज के सबब से वो खानदानों का स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो रहा है। इसलिए जरूर है क्या करें जो है खानदान के स्ट्रक्चर को जो है वो ठीक कर सके। और खानदान का स्ट्रक्चर किसने बनाया है? और वो एक ही है इस कायनात के अंदर, सिर्फ और सिर्फ खानदान का दिल रखने वाला। वो कौन है? यहोवा खुदा। हालेलुया। हमारा खुदा यहोवा है जिसने जो है ये स्ट्रक्चर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमीन। Amen. Worship you, Jesus. आखिरी बातें सिर्फ 2-3। I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. मलाकी। Thank you, Lord. Hallelujah. वो बंद करें। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैं पहले भी कह चुका हूं, आखिरी बात, चौथा बाब, मलाकी चौथा बाब उसकी 5वीं आयत। देखो खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आऊं और जमीन को मालूम करूं। मुबादा में आऊं और जमीन को मालूम करूं। अजीज भाइयों, जमीन इससे पहले मालूम ठहरे। बाप का दिल बेटे की तरफ माइल होना चाहिए, बेटे का दिल बाप की तरफ क्या होना चाहिए? माइल होना चाहिए। यह कैसे माइल हो सकता है? स्पिरिट ऑफ एलिजा की वसीले से खुदा एलिया को भेजने वाला है। आखिरी दिनों में भी ऐसा होने वाला है। उसने जो है यूहन्ना बपतिस्मा को भी जो है एलिया की रूह में जब वो भेजा है, और आइंदा दिनों के अंदर भी जो एलिजा मिनिस्ट्री वकूफ में आनी चाहिए। आज से ही जो अपने दिलों को एलिया की स्पिरिट के लिए तैयार करे, एलिया की मिनिस्ट्री के लिए तैयार करे। हर एक वर्द काश एलिया बन जाए, हर एक चर्च जो है एलिजा मिनिस्ट्री बन जाए, जिसके जरिए से बाप और बेटे जो है वो एक हो जाएं, और बाल के पुजारियों को क्या किया जाए? बोलिए,
कदरून के नाला के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया जाए उन 450 नबियों को जो है इस्राएल के बेटे और बेटियों को खा रहे हैं। इस जमीन के ऊपर यबूसी स्पिरिट को, इस बादशाह को, उसके सारे नबियों को और उनके सारे हाकिमों को जो इस फिजाओं के अंदर काम कर रहे हैं, जिससे जो बेटे और बेटियों को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं और उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इनको क्या करने की जरूरत है? इनको एलिया कत्ल करेगा। आमीन। इनको कौन करेगा? बोलिए। आइए एलिया स्पिरिट ऑफ एलाइजा के लिए दुआ करें कि खुदा मेरी जिंदगी में ये काम हो ताकि मेरे बेटे और बेटियां बाल के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए नजर हो जाएं। हालेलुया। ये इब्राहिम सा दिल हो जो अपने बेटे को जहां खुदावन के लिए देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये हन्ना की तरह हो जो सैमुएल को अपने बेटे जहां खुदा के लिए देने के लिए तैयार हो। आमीन। अगर आज जो है आप इस जो है स्पिरिट के अंदर आएंगे तो यबूसी स्पिरिट को हम भगाने वाले होंगे। अजीज बहनों भाइयों, खुदा ने कहा इन 7 कौमों को क्या करना है? ये तुमसे जोरावर है, तुमसे क्या है? ये बड़ी है। दो बातें हैं, ये बड़ी हैं और क्या है? लेकिन मैं तुम्हें क्या करूंगा? इनको तुम्हारे सामने से शिकस्त दूंगा। आमीन। खुदा हमारे साथ है। अगर आप कहेंगे कि ऐसा नामुमकिन है, मेरे बेटे और मेरी बेटियां मुझसे जुदा हो चुके हैं, मेरे खानदान का स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, यह नामुमकिन है। अजीज बहनों भाइयों, मुमकिन है। हालेलुया। मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको घुटनों के बल होना होगा, इसके लिए अपने हाथों को बुलंद करना होगा, इसके लिए जो है वो क्या करना होगा? अपने खुदावन के तालिब होना होगा। और इसके लिए जो है जैसे ये एलिया ने किया, उन 12 पत्थरों को का मजबा बनाया, उन टूटे हुए पत्थरों को उसने क्या कर दिया? 12 को जमा कर लिया। हालेलुया। उन 12 पत्थरों के नाम से इस्राएल के कबीलों के नाम से जब पत्थरों को जमा कर कर वहां पर मजबा बना दिया। आइए अपने खानदानों को जो है जमा कर ले एक जगह के ऊपर, वहां पर आग आएगी। हालेलुया। वहां पर आग आएगी। ये टूटे हुए खानदानों में आग नहीं आती, टूटे हुए खानदानों में आग नहीं आती। जब 12 के 12 पत्थर या लेकर उसने जो है मजबा बनाया, वहां पर आप देखिए आग आना शुरू हुई। ब्रोकन फैमिलीज के अंदर आग नहीं आ रही है, ब्रोकन फैमिलीज के अंदर जो है वहां पर तमाशे लगे हुए हैं, वहां पर बाल नाच रहा है और अपने आप को जख्मी कर रहा है और अपने आप को जो है वो तबाह बर्बाद कर रहा है। अजीज बहनों भाइयों, कैसे आएगी आग? अपने घराने को जमा कर कर जो है क्या करना शुरू करें? अपने खुदावन के गीत गाना शुरू करें, उसकी प्रस्तुत करना शुरू करेंगे और उसकी सताइश करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Oh my God, I praise you Jesus. आइए दुआ करें। मैं चाहता हूं कि हम दुआ स्टार्ट करें। Mighty Jesus Christ. थोड़ी देर के लिए झुक जाइए उसके हुजूर में। ये राइट वक्त है कि इस पहाड़ को सर किया जाए। Praise Jesus Christ. अगर आपके बेटे और बेटियां आपके साथ हैं तो आप उनका हाथ थामें। आई वर्शिप यू। कोई भी आपके अजीज आपके साथ है तो आपके अपने हाथ उसके साथ रखें, ऐहद कीजिए। आई वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट। वर्शिप यू। माउंटेन ऑफ फैमिली पर चढ़ने की कोशिश कीजिए। आई वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट। बाल की प्रस्तुत करने के का सबब तो नहीं बन रहे। मैं स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को भगाने के लिए, उसको रद्द करने के लिए, जो रिजेक्ट करती है हम उसको आज रिजेक्ट करेंगे।
अपना हाथ दिल पर रखिए। हालेलुया। उस वक्त एलिया के सामने सारी कौम थी और बाल थे, बाल के पुजारी थे। उससे सवाल किया, तुम्हारा दिल क्यों डावाडोल है? अगर बाल ही खुदावन है तो उसको, उसकी प्रस्तुति करो। अगर खुदावन ही खुदा है तो उसकी तरफ आ जाओ। वो खामोश हो गए, लेकिन जो ही वो मिल गए, जो ही एलिया ने सब पत्थरों को यूनाइट कर दिया, देन उनकी जिंदगी में रिवाइवल आ गया। सारे पेरेंट्स और बेटे और बेटियां भी इस वक्त जो यहां पर बैठे हैं, वो अपने दिल में अहद करें, इस यबूसी स्पिरिट को अपने दिल से, अपने गिरदो नवाज से, अपनी सोचों और ख्यालों से दूर करें। जिस जगह के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, उसका इनकार है। एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं, सुनने से इनकार कर रहे हैं, कंसीडर करने से इनकार कर रहे हैं। क्या आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं कर रहे, या माँ बाप अपने बेटे और बेटी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, या उसे कबूल नहीं कर रहे, बेटे और बेटी को ठीक तौर पर कबूल नहीं कर रहे, या जो है बेटे बेटियां जो अपने माँ बाप को ठीक तौर पर कबूल नहीं कर रहे हैं, जो उनकी सुन नहीं रहे हैं। बेटे बेटियां माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, या माँ बाप उनके सुनने से इनकार कर रहे हैं। अजीज बहनों भाइयों, इस स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को रद्द कीजिए यीशु मसीह के नाम से, होली स्पिरिट की कुदरत से। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं क्वायर के बहनों को बुलाऊंगा, वो गुनगुनाएं, ऐ बाप हम है तेरे, ऐ बाप हम है तेरे और तू है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। ऐ खुदावन, मैं इस यबूसी स्पिरिट को, जो जिसने खानदानों के अंदर जगह बनाई हुई है, जिससे खानदानों का स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जिससे जो है खानदान टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, जिससे जो नाजायज ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं, जिससे जो है बद अखलाकी पैदा हो रही है, जिससे एकदम खुदा खानदानों के अंदर बर्बादी पैदा हो रही है, मैं यबूसी स्पिरिट, ए बाल, ए मोलक, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से, इस पहाड़ से मैं तुझे डांटता हूं, दूर हो जा। मैं तुझे रद्द करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं खानदानों से तुझे डांटता हूं। अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त मैं तुझे हुक्म करता हूं, खानदानों से दूर हो, अभी और इसी वक्त। और अबारा संधेर लबारे खेतेरे मंदर संधेरी भी कोरोना मंदिरी है तुझसे रिश्ता ये कैसा प्यारा, ए बाप हम है तेरे, ए बाप तू हमारा, ए बाप हम है तेरे, ए बाप तू हमारा। मट्टी से
Yes, Lord. चरणों में झुका दूं, जीवन ये तेरा सारा। हे बाप हम हैं तेरे, हे बाप तू हमारा। तेरे खून से धुल गए हम, ये जरा Hallelujah. तेरे सभी। आओ करें शुक्र हम, देखे और ये सुख तेरी। मेरा रब कभी न सोए, वो जो बाप है हमारा। मेरा रब कभी न सोए, वो जो बाप है हमारा। हे बाप हम हैं तेरे, हे बाप तू हमारा। हे बाप तू हमारा, हे बाप तू हमारा। We praise you, Jesus. हम तेरे खून से धुले हैं, ये सारे घराने तेरे खून से धुले हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, वालिद और वालिदा, माँ बाप और शोहर और बीवी और सारे बच्चे जो तूने कलीसिया के अंदर ऐ खुदा और ख़ानदानों के अंदर तूने दिए हैं, इस बाल की बुरी नज़र को मैं डांटता दूर हो जाए। स्पिरिट ऑफ होमोसेक्सुअल को, स्पिरिट ऑफ लेस्बियन को, स्पिरिट ऑफ गे को और स्पिरिट ऑफ पेडियोफिलिया को और स्पिरिट ऑफ बेस्टैलिटी को यीशु मसीह के नाम से डांटता दूर हो जाए। और स्पिरिट ऑफ अबॉर्शन को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता दूर हो जाए। ऐ खुदावन, मैं तेरी कुदरत को और तेरी कुव्वत को, तेरी पाक रूह की मोहब्बत को मैं ज़िंदगियों के अंदर चाहता हूँ। ऐ खुदावन खुदा, बेटे और बेटियों के दिल, दिमाग, सोचे अपने ख़ानदान की तरफ जुड़े रहें। और खुदावन खुदा, माँ बाप के दिल एकदम बेटे और बेटियों की तरफ एकदम झुके रहें। शोहरों और बीवियों के दिल एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और खुदावन खुदा, अनहोली स्पिरिट को यह है जो जिंदगियों के अंदर काम कर रही है, यह है मैं डांटता हूँ इस नापाक कुव्वतों को जिससे ख़ानदानों के अंदर शोहरों और बीवियों के दरमियान में खराबियाँ पैदा होती हैं। मैं इस खराबी को डांटता हूँ, दूर हो जाए। और खुदावन खुदा, ये यबूसी स्पिरिट ख़ानदानों से परे रहे। और खुदावन ते लोग फ़क्त तेरी प्रस्तुत करें और तेरी सताइश करें। तुझे अपना बाप, अपना खुदावन मांगी और हमेशा कहते रहे, ऐ हमारे बाप। ऐ खुदावन, इसी स्पिरिट के अंदर तो इनको जो है वो लिए रख, तेरा पाक रूह इनकी रहनुमाई करे। ऐ खुदावन खुदा, तेरी मदद के बगैर ये कुछ नहीं। तो मददगार यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन आप सबको बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू। इस दफ़ा इसका आखिरी सरमन जो है, ये इसको वाइंड अप करूँगा इन सातों को। ये अगली दफ़ा इसका आखिरी सरमन होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ फिर से, ये इसको भूल मत जाइएगा। इन सरमन्स को इसको जो है यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुनिए, दूसरों को जो है शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसको सुन सकें। और ज़रूरी बात जो आपसे करना चाहता हूँ, क्यों आप अपने घरों में बैठे रहते हैं, दुआ के लिए आया करें। या ख़ानदानों समेत, ये ख़ानदानों का मामला है, ये हमारे बेटे बेटियों का मामला है। इसलिए ज़रूर है कि ख़ानदान मिलकर दुआया जो है मीटिंग में आएँ ताकि हम मिलकर दुआ में हाथ बुलंद करें, घुटने टेकें, आंसू बहाएं और यूँ अबलीस की कुव्वतों को शर्मिंदा करें। और ये भी बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में हमने संडे स्कूल को सैटरडे कर दिया है। और आमतौर पर ये जो टाइमिंग होगा ये इवनिंग 7 o'clock है, शाम 7 से 8 बजे का टाइम है। आप ज़रूर अपने बच्चों को भेजें। गॉड ब्लेस यू। और मज़ीद जो है वो आप टीचर मारिया के साथ रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अभी जब खुदावंद खुदा के बंदा ने कलाम किया है
تو یاد رکھیں یہ نرسنگے پھونکے گئے ہیں کیونکہ خداوند آ رہا ہے اور وہ تیاری کروانا چاہتے ہیں کہ کلیسیا ان قوموں سے رہائی پائے اور خداوند کی کلیسیا بن جائے. آمین. یہ آپ کی پریپریشن ہے. روح میں محسوس کریں. روح آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے ہماری اور خداوند خدا کا بندہ بھی اس طرح ہمیں تیاری میں لا رہے ہیں. آمین. آئے زوردار تالی بجائیں اور اپنے آپ کو یبوسیوں، کنانیوں، جرجاسیوں، ہندیوں، اوریوں سے آزاد کریں اور اپنے خداوند خدا کے بن جائیں. آمین. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. خداوند کا شکر ہو، میں نے ان 7 میسیجز سے بڑی برکت پائی ہے اور یقیناً آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں خداوند کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹا ہے. ہم سب نے برکت پائی ہے. آمین. میرے عزیزوں، جس طرح سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جمعرات کو اکٹھے ہوں، ہم بدھ کو اکٹھے ہوں، ہم اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائے. خدا کے خادم کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. یہ عام بات نہیں ہے اس طرح سے کلام کو بیان کرنا، اس کی پوری تشریح آپ تک لے کر آنا. یہ پورے ہفتہ کی تیاری ہے. خداوند کا خادم جو ہے وہ بیدار ہے اور کلیسیا کے لیے تازہ روٹی کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ خوراک اچھی ملے اور ہم سیر اور آسودہ ہوں، برکت پائیں، قوت پائیں اور اپنے خداوند کے نام کے لیے وہ کام کریں جو وہ چاہتا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں اس لیول تک آنے کے لیے ابھی دیری کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک ان 7 قوموں کو اپنی زندگیوں سے نکالا نہیں ہے، ان کے اوپر فتح نہیں پائی ہے. ہمیں فتح پانی ہے اور اپنے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. ہاللیلویا. آئیں، ابھی وقت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہم خداوند کی حضوری میں بڑھائیں گے اور کوائر کے ساتھ مل کر گائیں گے. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. ان 7 قوموں پر فتح جو ہمیں پانے کی قوت اور زور دیتا ہے وہ رب الافواج کا نام ہے. آئیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور کوائر کے ساتھ مل کر اس گیت کو گائیں گے. Yeah.
मिल कर ताली बजाओ, है तो तुम संतों की उठाओ।